हाँ जी बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ प्रॉपर्टी ਹੈ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲਸ ਆ। ਆ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ 100% ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖਵਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ 1 ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਰੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। once again ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ we can apply the operation on any row, ठीक है, or column, then that row or column will change, ठीक है, समझ गए। बट अदर टू, अगर 3x3 है, 3x3 है तो 3 रो होनी है। एक ते लाया तो एक रो चेंज करके अदर टू सेम रहनी है, बट द अदर टू will remain same, ठीक है। सो वंस अगेन अगर किसी भी रो ते या कॉलम ते असी प्रॉपर्टी ऑपरेशन दी लाई है, ਉਹ रो या कॉलम चेंज कर जाएगा, ठीक है, एंड बाकी ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ रो ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ रो ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਐਸੇ 2 3 4 5 6 7 ਆ 1 1 1 ਹੈ, ठीक है, ਆ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ रो ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ रो ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸੇਮ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ रो ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫॉर एग्जांपल ਆ ਬਣ ਗਈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ रो ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਯਾਰ रो ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ रो ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ रो ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਤੇ, ਉਹ रो ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, that row or column will change, but ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ the value of the determinant will remain same। ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ रो ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ रो ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ। रो ਕਾਲਮ ਬਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैके चलदा, मान लो मैं कॉलम 1 ते ऑपरेशन ला रहा, ठीक है। वो कहता ऑपरेशन किवें है कि कॉलम 1 ते लाना है, तो कहता कॉलम 1 नू चेंज करना है। ਇਹਦਾ मतलब है कॉलम 1 ते ऑपरेशन लाया, ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 चेंजेस टू, कॉलम 1 बदल रहे, कॉलम 1 प्लस अल्फा टाइम कॉलम 2 प्लस बीटा टाइम कॉलम 3, ठीक है। आ साडा रूल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कॉलम 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ चेंज करता ਇਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ 1 ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਮ 1 ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਾਲਮ 2 ਕਾਲਮ 3 ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਮ 1 ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕੀ ਹੈ। अल्फा बीटा कैन बी वेर अल्फा बीटा आर एनी स्केलर्स, एनी स्केलर। मतलब अल्फा बीटा अगर 1 1 है तो की हो गया, मैं कॉलम 1 लिखता कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। अगर मान लो मैं बीटा 0 ले लिया, अल्फा 1 ले लिया, तो कॉलम 1 की लिखा गया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगर बीटा 0 ले लो, अल्फा -1 ले लो, इसका मतलब कॉलम 1 लिखता कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो इसका मतलब ऑपरेशन मोटा मोटा अगर तुम देखो नेगा मारो की कर रहा है, लीनियरली असी ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट अल्फा बीटा,
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਅਲਫਾ ਤੇ ਆ ਬੀਟਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਮ 1 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਮ 1 plus some number time column 2 plus some other number time column 3, ठीक है। point to be noted, column 1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, C1 ਹੈ ਤੇ C1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, C2 ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ C2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ if we are applying operation on any column then we must take it to the first, और ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ठीक है। एंड अल्फा बीटा वी कैन चूज वेरी इजीली डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, वी हैव a liberty, we can plus or minus 2 or 3 columns, you know। और ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਐਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ 1 ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, सेम रहेगी। वो फटाफट प्रूव करते हैं, लेट अस सी कि वैल्यू सेम कितना रह जाएगी। डिटरमिनेंट ले लो, लेट्स से a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है, डेल्टा। लेट अस अप्लाई द ऑपरेशन c1 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ c1 प्लस अल्फा टाइम c2 प्लस बीटा टाइम C3। लेट अस अप्लाई दिस ऑपरेशन, नाले तुहानू ऑपरेशन लाना आ जाएगा। तो पहली गल, ऑपरेशन कितने ला रहे हैं आप C1 ते, और मैं की क्या सी जिते ऑपरेशन ला रहे हैं वो चेंज होएगा, बाकी दोनों सेम। तो स्टार्टिंग ही इत्थों करया करो, ऑपरेशन ला रहा मैं C1 ते, पहला तो C2 C3 सेम लिख दो, उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसे छाप दो, B1 B2 B3। इनफैक्ट दैट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेप, C1 C2 C3, ठीक है। हाँ जी, कॉलम 1 ते ऑपरेशन लाना, आ कॉलम है ना पुत्र, वर्टिकल कॉलम है, दिस इज द कॉलम, आ कॉलम 1 है, आ कॉलम 2 है, आ कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 ते कॉलम 3 सेम। हुण कॉलम 1 चेंज किच होएगा, लुक एट दिस, कॉलम 1 नू लिखिया कॉलम 1 मतलब दिस प्लस अल्फा टाइम कॉलम 2। आ हुण ख्याल नाल समझो, आ कॉलम 2 है, ठीक है, आ कॉलम 3 है। कहना कॉलम 1 लिखो दिस प्लस अल्फा टाइम, जस्ट इमेजिन कॉलम 2 ਨੂੰ अल्फा ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, कॉलम 3 ਨੂੰ बीटा ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ठीक है। अच्छा अगर ਇਹਨੂੰ अल्फा ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ तो की होएगा, ਇੱਥੇ अल्फा b1 अल्फा b2 अल्फा b3 आ जाएगा, ਇੱਥੇ बीटा c1 बीटा c2 बीटा c3 आ जाएगा। ਹੁਣ कॉलम 1 ਨੂੰ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, c1 प्लस दिस, हाँ जी ऐड करो, की आएगा पहला एलिमेंट a1, ठीक है, की आ गया a1 प्लस एनू अल्फा ना मल्टीप्लाई करता, कितना आ गया, आ पहला ऐड होएगा ना, पहले एलिमेंट अल्फा b1 प्लस अल्फा c1, समझ रही गल। ऐदा ही हाँ जी सैकेंड की बनेगा a2, इत्थे इमेजिन अल्फा ना मल्टीप्लाई करता, ठीक है, इत्थे बीटा ना, तो इत्थे अल्फा इत्थे बीटा, सो अल्फा b1 प्लस बीटा, सो अल्फा b2 प्लस बीटा c2, ऐसे लास्ट 3 वाला आ जाएगा a3 प्लस अल्फा b3 प्लस बीटा c3, आ हो गया, ठीक है। सो तुसी की किया, आ वाला ऑपरेशन लाता कॉलम 1 ते। सो मैं बार बार रिपीट कर रहा, कॉलम 1 ते ऑपरेशन लाया तो कॉलम 1 चेंज हो गया, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम रहे। कॉलम 1 किवें चेंज हो गया, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, कॉलम 1 प्लस अल्फा टाइम कॉलम 2 प्लस बीटा टाइम कॉलम 3, ऐदा ही ऐड करता कॉलम ਨੂੰ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ਐਵੇਂ ऐड ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ कॉलम 1 ਤੇ चेंज हो गया है, बट अगर ਇਹਦੀ वैल्यू डेल्टा ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू भी डेल्टा, ਅਸੀਂ प्रूव करना कि डेल्टा ਦੇ बराबर ही है, लेट अस प्रूव। ਹੁਣ पिछले लैक्चर की प्रॉपर्टी ते आ जाओ, अगर एक कॉलम के अंदर ਇਹਦਾ 2 या 3 ਦਾ सम ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ਹੁਣ किन्ने है, 3 है, ਅਸੀਂ 3 डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेक हाँ जी 3 डिटरमिनेंट्स, ठीक है। और किवें बनाईदा है, ਜਿਹਦੇ ਚ हैगा ਉਹਨੂੰ स्प्लिट कर देंगे, बाकी दोनों सेम लिखी दा, पहला सेम लिख दो b1 b2 b3,
C1 C2 C3 ਐਦਾਂ ਹੀ B1 B2 B3 ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਬਟ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ A1 A2 A3 ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ B1 अल्फा B2 एंड अल्फा B3 समझा रही गल और तीजा बीटा वाला इत्थे आ जाएगा बीटा C1 बीटा C2 ਤੇ बीटा C3 ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ अल्फा सॉरी फर्स्ट कॉलम सैकेंड डिटरमिनेंट दे फर्स्ट कॉलम चो अल्फा कॉमन आएगा अल्फा कॉमन आ जाएगा बाहर इत्थे ते एक ही बनया B1 B2 B3 एंड B1 B2 B3 दो कॉलम सेम ते वैल्यू है दी 0 एचों फर्स्ट कॉलम चो बीटा कॉमन आ जाएगा ते की बचेगा C1 C2 C3 C1 C2 C3 दो कॉलम सेम वैल्यू 0 तो इसका मतलब कि आंसर साडा वही रहा गल समझ आ गई So I hope enna clear है ਤੁਹਾਨੂੰ कि we can apply any operation on any row or column that row or column will change ठीक है other two will remain same ठीक है that row or column has changed but the value of determinant remain same और एक मेन होर गल ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਰੋ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਸਟ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਾਹਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆ these alpha beta in the operation of property will not be actually divided outside ठीक है किते पिछले ना कंफ्यूज ना कर जियो याद है कि नहीं पहला प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ k ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ k ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਮ 2 ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਾਲਮ 3 ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਾਹਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ समझन लगे अजीब लगता है बट वंस यू गो टू क्वेश्चन दैट इज़ वेरी ईजी सो चलो फिर तो ਇਹਦਾ मतलब किसी भी कॉलम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कॉलम लेट्स से चलो कुछ कॉमन ऑपरेशन लिख के दिखाना मैं C1 लिख सकते C1 plus C2 plus C3 अल्फा बीटा 1 1 ले ले ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ I can write C1 ਨੂੰ C1 minus C2 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਸੀਗਾ ਨਾ तो इत्थों अगर मैं बीटा ले लिया 0 अल्फा ले लिया -1 तो आई कैन सबट्रैक्ट 2 कॉलम ठीक है अगर मैनू लोड नज़र आती है क्वेश्चन च यार मैं 2 कॉलम माइनस करके मैनू सिंपलीफाई हो रहा तो मैं माइनस कर सकदा ठीक है समझ आई गल बट इस गल का ख्याल रखना ਜਿਹੜੇ कॉलम ते ला रहे हो पहला लिखा करो C1 है तो C1 पहला जिवें मैं कहां C2 लिख सकते हैं C2 - C1 बिल्कुल ठीक है C2 ते लाया वो पहला लिखो C2 - C1 अल्फा -1 बीटा 0 ठीक है जिवें R3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R3 + 2 ਟਾਈਮ R3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R3 + 2 ਟਾਈਮ R2 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ रो 3 ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ रो 1 ਤੇ रो 2 रो 1 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 0 2 3 4 ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ C1 ਨੂੰ C1 into C2 into C3 this is like no operation ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ this is nothing ਇਸ ਕਰਕੇ we can linearly plus minus ਠੀਕ ਹੈ और हमेशा की करना चाहिए हुण कुछ कॉमन चीज़ां कोई भी जिवें 2 रोज़ या कॉलम्स है ठीक है उन्हां नूं ऐड करके वेखो ठीक है तिन्नां नूं रोज़ कॉलम नूं ऐड करके वेखो किते आंसर 0 तां नहीं आ रहा
आंसर 0 आ रहा है, गल खत्म। एक कुछ कॉमन चीज़ां हुण ऑपरेशन लाउण दा दसने आ, कोई भी 2 रोज़ या कॉलम पए उन्हां नूं ऐड करके वेखो यार 0 आ रहा ते गल खत्म। तिन्नां नूं ऐड करके वेखो या 2 रो या कॉलम नूं ऐड करके वेखो, दिस इज सो कॉमन, किते कोई नंबर सेम ਤਾਂ नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो तुसी ऐड किया तिन्ना रो नूं या तिन्ना कॉलम नूं, कोई नंबर सेम आ गया, बस ठीक है, दैट इज डिजायरेबल सिचुएशन, ठीक है, वो सेम आ जाएगा और सेम आएगा तो फिर की करांगे, अगे उन्होंने कॉमन ले लांगे, ठीक है, फिर अगे उन्होंने सिंपलीफाई कर लांगे। हले बस है ना लिख लो, करना किद्दां मैं दसदा, ठीक है, विल सिंपलीफाई। सो की सोचना है कि जिवें आ देखो, मतलब आ क्वेश्चन देखो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, b minus c minus a minus b, and c minus a minus b and b minus c। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਐਡਾ ਲੰਬੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਡ ਕਰੋ, ਆ ਕਾਲਮ 1 ਹੈ, ਕਾਲਮ 2 ਤੇ ਕਾਲਮ 3, c1 plus c2 ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਊਗਾ a minus b plus b minus c plus c minus a, 0। ਐਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 0, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂ ਕਾਲਮ 1 ਤੇ ਕਾਲਮ 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, क्योंकि मैं सीधा ऐड कर रहा है मतलब अल्फा 1 ते बीटा 1 डायरेक्ट है, ठीक है। तो की होएगा, किहदे ते ऑपरेशन लाया पुत्र मैं, कॉलम 1 ते, ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम। पहला कॉलम 2 ते कॉलम 3 ਐਵੇਂ छापो, पहला उल्ट शुरू करा करो, ਜਿਹੜੇ कॉलम ते ऑपरेशन लाया वो बाद च लिखो, बाकी दोनों सेम लिख दियो। सो कितना आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी ते बी माइनस, समझ आ रही गल बेटे, क्लियर है पुत्र। बस हुण कॉलम 1 चेंज हो गया, की चेंज होया, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐदा ऐड करो लाइक दैट, कॉलम नू वर्टिकली, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। सो आएगा इत्थे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, आ पहला वाला, फिर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी दूजा, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी तीजा, कट के सारा 0 आ गया, भी 0। सो 0 0 0, पहला कॉलम 0 पुत्र ते डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं कॉलम ते ही लाया इनू, मैं इनू रो ते भी ला सकता सी, ठीक है। चलो इनू मैं रो ते ला के दिखा दिना, जिवें सपोज करो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, कहता यदी वैल्यू दसो वेयर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, आ उन्हें देता है, तो ठीक है। हुण भावें इनू रो वाइज ऐड कर लो, भावें कॉलम वाइज, इतने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो अगर कॉलम वाइज ऐड करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, पॉज करके सोचो क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 की आएगा, आ एवं ऐड होएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो कितना बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगले च भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 सेम ही है, थर्ड च भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा सेम बन रहा है। जिवें रो वाइज लावा, हुण रो एवें हमेशा कॉलम है तो एवें रो नूं एवें लाओ, हुण रो 1 अगर मैं रो ते लावां, रो 1 नूं लावां, लेट्स प्रैक्टिस r1 प्लस r2 प्लस r3, जिहदा मतलब मैं रो 1 ते ला रहा, इसदा मतलब रो 1 चेंज करेगी, रो 2 रो 3 सेम, पहला एवें करो, रो 2 ते रो 3 नूं सेम लिख दिओ, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। हुण क्योंकि रो 1 चेंज होया, किवें होया, देखो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सो दिस इज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, पहला एलिमेंट बनेगा आ वाला 1, और रो एवें ऐड होनी बेटे, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब मैं बार बार ता वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके दिखा रहा है, कॉलम है तो हमेशा इस तरह ऐड होना, रो है तो एवें ऐड होनी। बच्चे मोस्ट कॉमन मिसटेक आ, ऑपरेशन इत्थे रो दा लिखोगे लाई कॉलम ते जांदे आ, या कॉलम का लिखोगे लाई रो ते जाते हैं। हुण मैं रो ते लाना तो हमेशा एवें हाथ रखो, R1 प्लस R2 एवें ऐड करो, सो R1 प्लस R2 दिस प्लस दिस आ ऐड हो क्या बनेगा, ठीक है। सो ऐदा ही हुण दूजा एलीमेंट की बनेगा, पहला जमा दूजा, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी ऐदा ही ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। नाउ सर्टनली यदी वैल्यू कितनी है 0, सो क्योंकि पहली रो 0 आ गई है तो आंसर साडा 0 आ जाएगा। सो 0 0 0, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। वंस अगेन जब तुसी हले शुरू किया चैप्टर,
कॉलम ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ कॉलम 1 है कॉलम 1 ਨੂੰ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ਐਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ठीक है चलो एक दो एग्जांपल होर जिवें आ देखो साइन स्क्वायर अल्फा लेट्स से 1 cos square alpha sin square beta 1 cos square beta sin square gamma 1 cos square gamma ठीक है चलो शुरू करते हैं ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਾਲਮ 1 ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਾਲਮ 3 ਹੈ ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਲਮ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ sin square alpha plus cos square alpha 1 sin square beta plus cos square beta 1 sin square gamma plus cos square gamma 1 ठीक है नजर आ रहा है दोनों को ऐड करके कुछ बन रहा है तो अगर मैं कॉलम 1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਨਵੋल्व ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक है तो कॉलम 1 चेंज हो जाएगा ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 2 कॉलम 3 सेम ਰਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ सेम लिखो so कॉलम 2 कॉलम 3 सेम what is कॉलम 2 1 1 1 column 3 is cos square alpha cos square beta and cos square gamma कॉलम 1 की चेंज होया कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 हाँ जी कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 ऐड करो वो कॉलम 1 लिख दो कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा गल समझ आई और एदी वैल्यू भी 1 है एदी भी 1 है एदी भी 1 है तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ठीक है कॉलम 2 भी इन्वॉल्व कर सकता सी बट मैंने लोड़ नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ छोटे छोटे क्वेश्चन करने जिवें आ देखो लाइक a माइनस b ठीक है b माइनस a अल्फा c माइनस b b माइनस c बीटा ठीक है d माइनस e माइनस d गामा ਇਹਦਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ठीक है ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ तो ठीक है उत्ते आई जाओ आंसर बट इफ यू ऑब्जर्व a माइनस बी माइनस ए ऐड करके 0 b माइनस सी माइनस बी माइनस सी ऐड करके 0 d माइनस सी ई माइनस डी ऐड करके 0 तो की करिए कॉलम 1 ला दीए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 क्योंकि ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ कॉलम 3 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ तो ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ कॉलम 1 ਤੇ ਲਾਇਆ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 1 चेंज ਕੀਤਾ कॉलम 1 चेंज ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ मतलब कॉलम 2 ਤੇ कॉलम 3 सेम कॉलम 2 ਤੇ कॉलम 3 ਐਦਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੋ b माइनस a b माइनस c e माइनस d अल्फा बीटा एंड गामा कॉलम 1 चेंज हो गया कॉलम 1 की हो गया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 सो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम वर्टिकल हाथ खड़े करो ऐड करो कॉलम 1 ਤੇ कॉलम 2 ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ a माइनस b प्लस b माइनस a c माइनस b प्लस b माइनस c ठीक है d माइनस e प्लस e माइनस d सो आ सर्टेनली आ भी 0 आ भी 0 ਤੇ आ भी 0 now column 1 is 0 value of the determinant is 0 समझ आई गल सो कुछ बेसिक बिल्कुल ऑपरेशन लाए ठीक है समझ आई गल बेटे सो आई होप इन्ना क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है सो ठीक है अच्छा जिवें आ प्रॉपर्टी याद है कि नहीं ए बी सी अल्फा बीटा गामा ठीक है दो रो सेम है वैल्यू 0 है ना ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ रो 1 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਵੈल्यू 0 ਆ ਜਾਏ सोचो हाँ जी बिल्कुल ठीक है रो 1 है आ रो 1 ਨੂੰ अगर मैं रो 2 ਚੋਂ माइनस कर ਦਾਂ 0 आ जाएगा तो अगर मैं रो 1 लिख ਦਾਂ रो 1 माइनस रो 2 तो रो 1 चेंज हो जाएगा तो रो 1 हो गया चेंज बट रो 2 रो 3 सेम पहला सेम लिखा करो हाँ जी रो 1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ रो 1 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ रो 1 माइनस रो 2 सो कितना आएगा ਤੇ a आ रो 1 है ठीक है आ रो 2 है ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ a माइनस है 0 0 सो पहली रो 0 है तो वैल्यू 0 आ जाएगी समझ गए बेटे ठीक है अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ this is like very very common important question very common step you will see कि 1a square 1b b square 1c c square
ठीक है। इनू प्रूव करना है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए है a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। अच्छा हुण एक नोट लिख लो कि अगर साडे कोल इदा 1 1 1 बने होण, ठीक है, नोट लिख लो कि वी हैव 1 1 1, लिख लो इफ वी हैव 1 1 1 along any row or column, ठीक है, if we have 1 1 1 along any row or column, ठीक है, जिदा इत्थे पहले कॉलम च 1 1 है, then apply these two following operations, ठीक है, then apply these two following operations, ठीक है, to make, ठीक है, to make two zeros, to make, ठीक है, operations to make, हाँ जी, two zeros, ठीक है, along that row or columns and then expand, ठीक है, मतलब बिलीव मी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इदां दे बन जाते 1 1 1 बन जाता। सो जे 1 1 1 बनया होवे, हुण मैं फॉलोइंग ऑपरेशन दो क्या है, वो फॉलोइंग की है, मैं पहला समझा देना फिर लिखा देना। आ दो ऑपरेशन लाओ, उन्ना की है कि उस रो या कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ 1 1 1 ਬਣ ਗਿਆ, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। तो अगर मैं ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ ਨਾ, S1 ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸਬਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰੋਜ਼। तो मतलब अगर मैं लिखदा R1 ਨੂੰ R1 माइनस R2, ठीक है, तो की लिखा R1 ਨੂੰ R1 माइनस R2। चलो ला के देखते हैं। पहली रो ते लाया, पहली रो ते लाया, ਇਹਦਾ मतलब की होएगा दूजी ते तीजी सेम रहेगी, ठीक है। हालांकि मैं सीधे भी ला सकदा हां, दो दो इकट्ठे बिठा लए ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। तो दूजी भी सेम ते तीजी भी सेम, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਇਆ R1 ਨੂੰ R1 माइनस R2, तो पहली रो चों दूजी माइनस करो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। ਇੱਥੇ कितना आ गया a माइनस b, ਇੱਥੇ कितना आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आ ते एक हो गया, ठीक है। दूजा हुण ਇਹਨੂੰ ਐਚਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ R2 माइनस R3, ਹੁਣ R1 चेंज हो गया, रो 2 माइनस रो 3 करांगे, आ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। एंड सेकंड इज रो 2 ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ रो 2 माइनस रो 3। सो वी कैन अप्लाई दीज टू। कई बार पता की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ 1 1 ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 0 ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ whenever we have 1 1 1 we can subtract R1 minus R2। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲਾਵਾਂ, ठीक है, सो सिस्टमैटिकली आ नोट तुसी कर लिया आई गेस, ठीक है। सो पहला किहड़ा लाया, पहला लाया आपां इत्थे R1 ਨੂੰ लिखिया, साइड ते लिखिया करो R1 ਨੂੰ लिखिया R1 माइनस R2, रो 1 चेंज हो गया, रो 2 रो 3 सेम। हुण मैं इत्थे लावां रो 2 ते R2 ਨੂੰ लिखिए R2 माइनस R3, रो 2 माइनस रो 3। हुण रो 2 ते लाया, ਇਹਦਾ मतलब पहला काम की करांगे रो 1 ते रो 3 सेम। सो रो 1 ते रो 3 सेम, 0 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। रो 3 1 c स्क्वायर। तो मैं ज़्यादा पढ़ा रहा, मैं यही कह रहा कि जेड़े रो कॉलम ते ऑपरेशन लाना है वो चेंज होएगा, बाकी दोनों सेम, तो पहला बाकी दोनों सेम लिखा करो। हुण रो 2 की बनेगा रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 0 b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। सो यही मैं लिखाया सी उपर, तुसी नोट कर लिया होना शायद कि इफ वी हैव 1 1 1 अप्लाई दीज टू कंसेक्यूटिव ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन रो और कॉलम। हुण इत्थे 1 1 1 है तो रो चो माइनस करना पएगा, ठीक है। तो दो ला दो, पहले R1 ਨੂੰ R1 माइनस R2, ठीक है, समझ गए। ऊपर 0 बन गया, फिर R2 ਨੂੰ R2 माइनस R3, सेकंड 0 बन गया, और फिर एक्सपेंड कर दो बस। हुण तुसी देखो आ तुहाडा की होगा, पहली रो चो की कॉमन आ रहा है a माइनस बी, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज, चलो लिख दिए फिर तो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b, 0 b माइनस c इंटू b प्लस c, 1 c एंड c स्क्वायर, ठीक है। सो बस गल खत्म। हाँ जी, की होगा
पहली रो चों a माइनस बी कॉमन कर लो, दूजी रो चों b माइनस सी इधरों कॉमन आ जाएगा। सो बाहर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, हाँ जी की बचा है 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी 1 c स्क्वायर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾय ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਮ 1, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 0 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ a ਮਾਈਨਸ b ਮਾਈਨਸ c ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। प्लस 0 खत्म, माइनस 0 प्लस माइनस ते प्लस, सो प्लस 1 हाँ जी आ गया की बचे आ 4 बच गए। सो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, ठीक है बेटे। बस आंसर आ जाऊगा तुहाडे कोल a माइनस b माइनस सी, हाँ जी एनू इहदे नाल b प्लस सी माइनस एनू इहदे नाल a माइनस b। सो तुहाडा आंसर आ गया। सो दिस इज़ वेरी जिन्नी बार मर्जी वेरी ला लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं की समझाया कि जे 1 1 1 बने। और 1 1 1 कितना बनता मैं पहला समझा चुका है, रो वाइज ऐड करो, कॉलम वाइज ऐड करो। याद है मैं नोट लिखाया सी, कोई नंबर सेम तो नहीं आ रहा, जो कोई ऐड करके नंबर सेम आ गया वो कॉमन कर लो, कॉमन कटांगे की बचेगा 1 1 बन जाएगा। सो जे 1 1 1 आ गया, दो कंजैक्टिव स्टैप लाओ, या एक तो गल बन जाएगी जे 2 0 बन गए, और उन्ना तुहाडे को पहला R1 माइनस R2 इत्थे 0, R2 माइनस R3 इत्थे 0, और एदा रिजल्ट भी याद रखो, ठीक है। ठीक है, 1 is this is very common, मैं I'm over emphasizing that but that is not sufficient, I know because कितनी बार आना गा है। So that is a minus b minus c and c minus a। अच्छा चलो एक दो सवाल होर कराना थानू, जिवें आ देखो। अच्छा वो कहंदा इनू एलिवेट कर दें, ओके लो कहते सी। हुण मैं की दस्सिया सी, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहला की करो सारियां रोज या कॉलम नू ऐड करके वेखो कोई नंबर सेम तो नहीं आ रहा। चलो पहला कॉलम नू ऐड करे, पॉज करके कॉलम नू ऐड करके वेखो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करो की आ रहा। कॉलम 1 मैं क्या दस्सिया कॉलम 1 है तो हाथ खड़ा करो वर्टिकल, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हाँ जी H ऐड होएगा प्लस आ की बनेगा A प्लस X प्लस Y प्लस Z। ये सेकंड की बनेगा X प्लस A प्लस Y प्लस Z, आही आ रहा है X प्लस Y प्लस A प्लस Z आही आ रहा है। तो अगर मैं कॉलम नू ऐड करदा तो मेरा सेम आ रहा, ਉਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ऐड करके देखो मैं दस्सिया किते 0 बन जाए बहुत वधिया, ना बने कोई नंबर सेम आवे, ठीक है ਇਹਦਾ मतलब कॉलम ਨੂੰ ऐड कर दिए। बट अगर तुम रो वेखो ना करके सेम नहीं आ रहा, रो ਨੂੰ ऐड करो, ਐਵੇਂ हथ रखो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करो की आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ गया A प्लस 3x, आ गया A प्लस 3y, सर्टेनली बराबर नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब रो ते नहीं लगना है, कॉलम ते लगूगा। तो चलो शुरू हो जाओ, कॉलम 1 ਨੂੰ ਲਾਈਏ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 चेंज होएगा, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम, ठीक है। सो पहला तो जिहड़ा सेम है वो लिखी दा हुंदा, कॉलम 2 ते कॉलम 3 सेम। सो y a प्लस y एंड y, कुछ ज़्यादा खुला खुला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। अच्छा हुण कॉलम नू वर्टिकली हाथ खड़ा करो, हाँ जी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड करो। सो आ कॉलम 1 है, आ कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, एवें ऐड करना, हाँ जी पहला एलिमेंट की बने आ सारे ऐड हो जाने। सो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सैकेंड भी किवें बनेगा a प्लस एक्स प्लस, सो सेम आ गया तुहाडे कोल। चलो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब सेम आ जाए तो फिर किस्मत खुल जाती है, किदा, हाँ जी आड़ा सेम नंबर है बाहर कढ़ लो। सो लेट अस ऑपरेशन जब लाई दा ना बेटे नाल लिखदा, नाल लिखता तो उसके बाद की करांगे नैक्सट स्टैप ते टेकिंग, हाँ जी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, ठीक है फ्रॉम कॉलम 1 तो की बच जाएगा कॉलम 1 ते 1 1 1 आते कॉमन आ गया ना सारा बेटे, 1 1 1, हाँ जी की आ गया y a प्लस y z z एंड a प्लस z, ए तक तुसी आ गए, ठीक है। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ 1 1 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, एंड विच इज़ अगेन द मोस्ट डिजायरेबल सिचुएशन के 1 1 1 आ जाए, ठीक है। अब मैं रब कर रहा उत्थे आ रहा मैं वापस, ठीक है। अच्छा जब 1 1 1 बन जाए तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, हाँ जी हुण ए नू एचओ माइनस करिए,
ਹੁਣ S1 ਨੂੰ H ਤੇ ਰੋ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰੋ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, R1 ਨੂੰ R1 R2। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਚੈਪਟਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਰੋ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਾਲਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ S1 ਨੂੰ S1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ, R1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ R1 ਮਾਈਨਸ R2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ R1 R2, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ R1 ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ R2 R3 ਸੇਮ, R2 ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ रो, ਆ रो 2 ਹੈ, ਆ रो 3 ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ R1 ਮਾਈਨਸ R2 ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ 1 0, ए y माइनस ए प्लस वाई ब्रैकेट ना, सो कितना आएगा माइनस ए एंड z माइनस z 0। ਹੁਣ ਦੂਜਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ 2 0 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ 0 ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਲਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ रो 1, ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ रो 1, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a plus x plus y plus z, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਆਫ 0 0, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ a ਪਲੱਸ a, ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ a plus z माइनस z, ठीक है लास्ट फेज 0। तो आई गेस z ना z कटा गया, a इंटू ए स्क्वायर, सो तुहाडे को आंसर आ गया हाँ जी किन्ना a स्क्वायर टाइम a प्लस x प्लस y प्लस z आंसर आ गया, ठीक है बेटे समझ आई गल। चलो पॉज करो, ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਰਾ, मतलब मेरे सोल्यूशन डिस्कस करने तो पहला पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, और आंसर च भी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ जाता ए प्लस बी प्लस सी। ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ रो वाइज, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਟਸ ਡੂ दैट वे। ਕਾਲਮ ਪਹਿਲਾ ਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a प्लस b प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस 2c प्लस a प्लस b, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 टाइम a प्लस b प्लस c। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਆਏਗਾ, 1b ਹੈ 2b ਤੇ 2c, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟਵਾਈਸ a प्लस b प्लस c ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਂਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, रो 1 प्लस रो 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4c प्लस दिस 4a, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ रो वाइज ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ we will apply on column 1, so let's apply on column 1, लो column 1 plus column 2 plus column 3, ठीक है। सो column 1 ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, मतलब column 2 column 3 सेम रहणगे, पहला वो लिखो। सो आ column 2 ते column 3 सेम लिखो, a b plus c plus 2a, ठीक है, a b c plus a plus 2b। अच्छा ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਆ ਕਾਲਮ ਅਗੇਨ वर्टिकल, ਕਾਲਮ 1 प्लस ਕਾਲਮ 2, ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2 टाइम्स a plus b plus c, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 टाइम्स a plus b plus c, ਇੱਦਾਂ 2 टाइम्स a plus b plus c। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਚੋਂ 2 टाइम a plus b plus c ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ 2 टाइम a plus b plus c कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, नाल लिख देना, तो की बचा 1 1 1 a b plus c plus 2a, a b b c plus a plus 2b, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, S1 ਨੂੰ H माइनस 1 करना, तो हॉरिजॉन्टल है, रो माइनस करनी कॉलम रो माइनस करनी है, तो अगले स्टेप पे क्या आएगा, ठीक है बेटा नोट कर लें, अब मैं रब करता हूँ प्रोफिट, ठीक है। सो हाँ जी की करिए R1 ਨੂੰ R1, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਸ रो ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਆ रो ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, तो R1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ R1 माइनस R2, ऑपरेशन कितने लाया R1 ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R2 R3 सेम, सो आ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ रो 2 ਤੇ रो 3 सेम लिखो, 1 b plus c plus 2a b
1a c प्लस a प्लस 2b। ठीक है हाँ जी, हूँ r1 माइनस r2 1 माइनस 1 0। हाँ जी, a माइनस दिस a माइनस b माइनस c माइनस 2a, सो माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c एंड b माइनस b 0। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ 1 0 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 2 0 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਇਆ रो 1। और एक्सपैंड करने तो पहला यू कैन टेक दिस नंबर कॉमन, इतों a प्लस b प्लस c कॉमन कर लो, क्योंकि 0 0 सब कॉमन आ जाएगा। सो कितना आ गया 2 टाइम्स, चलो मैं टाइम बचाना, समझ गल। इतों तुसी आ a प्लस b प्लस c कॉमन कर लो पहली रो चो, और तुसी नाल लिख देना है टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन और बार स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एक्सपैंड बाय रो 1, रो 1 तो एक्सपैंड कर दो, आ नंबर के मल्टीप्लाई पे आइए। ठीक है हाँ जी, की आएगा प्लस 0। ठीक है 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1। हाँ जी, आ रो आ कॉलम आ रह गए 4, आ वाले थे आ वाले, सो कितना आएगा दिस माइनस दिस c प्लस a प्लस 2b माइनस 1 इंटू बी बी। ठीक है, और आगे प्लस ऑफ 0 0, आई गेस हाँ आंसर आ जाएगा। सो कितना आ गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी स्क्वायर, 2b माइनस b कितना आ गया a प्लस b प्लस c एंड दिस इवेंचुअली कम्स आउट टू बी, इतने लिख देना 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c दा होल क्यूब। ठीक है, आई गेस आही आंसर सीगा ट्वाइस a प्लस b प्लस c दा होल क्यूब। ठीक है, सो चलो और कर दें फटाफट। x प्लस 4 2x, हाँ जी ऐड करो कॉलम वाइज या रो वाइज जो मर्जी कर लो। कितना आया x प्लस 4 प्लस 2x, हाँ जी कितना आ गया 5x प्लस 4 एंड मोर ओवर आंसर च भी आ रहे। सो कॉलम 1 दूजी नो भी ऐड करके देखो, दिस इज C1 C2 C3 सेम आ जाएगा। ठीक है, समझ रही गल बेटे, ऐड करो ना सारे का आंसर सेम आ रहे। तो यदा मतलब कॉलम 1 ते अगर मैं ऑपरेशन ला दा, ठीक है कॉलम 1 नो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो देयरफॉर कॉलम 1 विल चेंज, कॉलम 2 कॉलम 3 रिमेन सेम, सो सेम वाले पहला लिखो। ठीक है, सो कैन यू सी हम पेस अप हो जाएगा, तो भी समझ आना शुरू हो जाएगा, और ईजी है क्वेश्चन ये वाले इस टाइप के। तो ऐड किया हाँ जी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ऐदा ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1 जमा कॉलम 2 जमा कॉलम 3 एवं ऐड हो रहे हैं। तो कितना आएगा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। ठीक है हाँ जी, हम की करिए इस ऑपरेशन लाने के बाद हम हाँ जी की करांगे 5x प्लस 4, अगले स्टैप ते की होगा कॉलम 1 चों कॉमन आ जाएगा, तुसी इत्थे साइड ते लिख देना टेकिंग ब्रैकेट 5x ब्रैकेट पाया करो। ठीक है 1 1 1, सो टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है हाँ जी, हम की करिए 1 1 1 बन गया, तो हम एनू S1 ਨੂੰ माइनस करना है, रो के कॉलम रो माइनस होगी R1 माइनस R2। ठीक है, सो नाउ लेट्स अप्लाई R1 ਨੂੰ R1 माइनस R2, क्योंकि R रो है बेटे जिन्होंने हाले भी नहीं समझ आया, एनू S1 ਨੂੰ H माइनस करेंगे रो माइनस होएगी। ठीक है, जब आप कॉलम करते हैं फिर 1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं लोड, सो R1 चेंज होएगा, R2 R3 सेम। ठीक है, R1 चेंज हो जाएगा तो R2 R3 सेम, पहला सेम लिखा करो। ठीक है हाँ जी 1 माइनस 1 0, हाँ जी दिस 2x माइनस x माइनस 4, हाँ जी कितना आ जाएगा x माइनस 4 2x माइनस 2x 0। ठीक है, सो ऊपर मेरा आपका समझ आएगा बेटे। सो दैट्स इट, हुण आपां इत्थों उपर नूं चल जाने। ठीक है हाँ जी, की होगा लेट्स एक्सपैंड बाय रो 1, क्योंकि 2 0 बन चुके हैं। ठीक है, सो कितना आएगा 2 5x प्लस 4 प्लस ऑफ 0, हाँ जी माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ जी आ कॉलम गया
आ रो हो गई हाँ जी दिस इंटू दिस तुसी उत्थे आ कांटे नहीं मारने तो मैं समझाने लिखा रहा सो कितना है x प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2x सो दिस कम्स आउट टू बी 5x प्लस 4 ठीक है इंटू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सो x माइनस 2x माइनस x ठीक है तो कितना आएगा 4 माइनस एक्स एच ओ माइनस कॉमन कर लो इतने माइनस माइनस प्लस आ जाएगा सो कितना आ गया 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर वही पूछा सी बैठ गया जरा अच्छा कई बार पता की करते हो एक क्वेश्चन है थोड़े इन्होंने जेई च भी आते तो बोर्ड च भी आते कहते दिस इज इक्वल टू 0 सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व फॉर एक्स ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋल्व करके किहदे बराबर आ गया ਇਹਦੇ आ इक्वल टू 0 कर दो तो इक्वेशन बन गई ठीक है तो इक्वेशन की बनी है सो 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 देयरफॉर इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0 देयरफॉर 5x प्लस 4 इज 0 और x माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हाँ जी इत्थे कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 4/5 इत्थे x इक्वल टू 4 आ तुहाडे दो सोल्यूशन आ गए ठीक है ठीक है चलो आई होप इन्ना क्लियर है बाकी नोट कर लो पॉज कर लो तो ये करो क्वेश्चन बाकी फिर बेटे नैक्सट क्लास करांगे